Excel. The first chapter is formatting cell content in MS Excel. So the main topics which you will cover in this chapter are formatting of cells, okay, aligning text in cells, okay, and using options under the number group, okay. So let's now we'll start with some formatting tools, how we can format the cells, what tools we can use for formatting the cells. See, formatting means what? Changing the appearance of the cell, okay. You can change the border of the cells, you can change the color border of the border of the cell also. See, by default all of you know what is the border is, okay. So we can change the color of the border also, okay. We can change the type of the border also. It may be shaded border, sometimes it could be line border, it could be broken dash like border, it could be some thick border also, it could be thin border also. There are various line styles could be chosen for the borders, okay. We can change the fill color of the cells also. See, the fill color means the color with which we can fill the cells also. Cells also could be filled with color also. Like borders also could be colored also, or they could be black also by default. The default color of the borders is black and the default fill color of the cells is white. All of you know because you have worked on worksheet in your class 6 also, okay. So we will discuss all these things one by one in this portion of your chapter, okay. So let's start with formatting your cells, okay. We'll cover some of these topics in this video. And the appealing. So what is formatting actually used for? It is used for making your sheet look more attractive and appealing. Appealing means what? Which looks which appeals you to the most. Appealing means what? Which motivates you to work on that, okay, which is more interesting for you, okay. You can change the what things you can change using formatting. The font type, you can add color to the cells also. Font type means what font of the text you are using in the to fill the text in the cells, that also you can change, okay. Then you can merge cells. You can align text to different positions of the cells, okay. Alignment means what? Changing the direction of text, okay. It would, by default, we have studied this in Word also. What was it there in Word? We had 4 types of alignments: left alignment, right alignment, justified, and your center alignment, okay. So here also we will having different types of alignments. Here we are having a bigger range of alignments, which you will see in the next coming topics, okay. ये एमएस वर्ड या एक्सेल में इस तरीके के रुपीस के सिंबल को इस्तेमाल करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे आप इस सिंबल को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा स्टार्ट बटन पर और यहाँ जाना होगा आपको कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पर रीजन और लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इस फॉर्मेट को आपको चेंज करना है इंग्लिश इंडिया से, तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको इसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आपको जाना होगा कीबोर्ड और लैंग्वेजेस में, इसमें चले जाइए, यहाँ पर चेंज कीबोर्ड के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपको जो कीबोर्ड लेआउट है वो चुनना होगा इंग्लिश इंडिया, तो यहाँ से आपको इसे कराना होगा ऐड, और ऐड कराने के बाद जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड पर जाइए, इसे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये इस लिस्ट में आ जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इसको भी यहाँ से ओके कीजिए और इसको बंद कर दीजिए। और इतनी सेटिंग करने के बाद में आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना होगा। यूनिकोड के लिए आपको टाइप करना होगा 20B9 और इसके बाद आपको इस्तेमाल करना होगा अपना राइट साइड का ऑल्ट बटन और उसके साथ में एक्स बटन। तो ऐसा करने से ही जो आपका 20B9 कोड है वो यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको रुपीज़ का सिंबल दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा आप ऑल्ट के साथ में 8377 यानी 8377 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी रुपीज़ का सिंबल आने लगा है। इसके बाद हम जाते हैं एमएस एक्सेल में और एक्सेल में भी हम देखते हैं कि रुपीज़ का सिंबल ऑटोमेटिक आ रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी फिगर डालिए और इस सेल को हम कन्वर्ट करते हैं करेंसी में। आप जैसे ही सेल को करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे पहले जब आप इसे करेंसी में कन्वर्ट करते थे तो यहाँ पर डॉलर का साइन आता था, तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक जो साइन आ रहा है वो आ रहा है इंडियन रुपीज़ का। आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश इंडिया को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये हुआ है इस वजह से क्योंकि हमने जो हमारे फॉर्मेट्स थे वो भी हमने इंग्लिश इंडिया में कन्वर्ट किए थे और हमने अपना जो कीबोर्ड लेआउट था उसको भी इंग्लिश इंडिया में कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर इन सब के बावजूद भी, ये सेटिंग्स करने के बाद भी अगर आपके सिस्टम में ये रुपीज़ का सिंबल नहीं आता है तो आपको एक छोटा सा विंडोज़ का अपडेट डाउनलोड करना होगा। अपडेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये जो अपडेट है वो काम करेगा इंडियन। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं
और आज हम जानकारी लेते हैं सेल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये सेल फॉर्मेटिंग आखिर होती क्या है और इसका क्या मतलब है। एक्सेल के सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें हम टेक्स्ट और नंबर दोनों चीज़ टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ टाइप किया है राम, और नंबर मैंने यहाँ टाइप किया है राम, और नंबर मैंने टाइप किया है 1 2 3। एक्सेल के सेल में एक विशेषता होती है कि ये आपके लिखे हुए या टाइप किए हुए टेक्स्ट को पहचान लेता है कि आपने नंबर लिखा है या टेक्स्ट लिखा है। आप दोनों चीज़ों में अंतर देख रहे होंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ़्ट साइड पर है और नंबर हमारे राइट साइड में है। अब इसके आगे भी इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट तो टेक्स्ट है ही, लेकिन नंबर में कई सारी अलग चीज़ें होती हैं। नंबर So today we are going to study about the next topic, which is applying fill color to cells. So students, in the previous topic we have studied about borders, how we can apply borders to the cells and how we can add colors, we can apply colors to those borders. Whatever border we are applying, we can also apply some colors. How we can do that, we have studied in the previous chapter, previous video. Okay, in the next video, in this video we are going to study about applying fill color to cells. Okay, so different cells in the worksheet can be shaded with different colors to make them attractive and make an attractive looking worksheet. See, worksheet will look attractive only if you are using various tools like fill colors and text colors to make your text more appealing, make your text more prominent, to make your text more distinguished. Okay, distinguished means what? See, if you are having different types of text, different types of data in your cell, that you must be shading those cells with either the different fill colors or with different font colors, so that the different data which you are having in your sheet, they should be easily distinguishable from each other. Okay, like if you are having 4 types of values in any worksheet, then you can use different types of fill colors and different types of font colors for distinguishing or for differentiating them from each other. Okay, we have to separate them from each other, and they should look very prominent also. They should be very readable also. Okay, they should look readable, and they should be very easy for the user to work also. Okay, this will be possible if you use proper fill colors and font colors for filling the text, filling the colors in the cell, and for coloring the text also. The color in the cells can also be colored by using the font color. Okay, the font color can also be changed. By default, the font color is black and the fill color is white. Okay, but this we all can change also. How we'll do this, we'll study in this next topic, in this topic which I am going to study now. Okay, बॉर्डर क्विकली एंड ईजिली, यानी बॉर्डर अप्लाई किस तरह से किए जा सकते हैं ऑटोमेटिकली। एक तो ये होता है कि हम काम कर रहे हैं तो उससे पहले हमने सिलेक्शन डिफाइन करी, और सिलेक्शन जहाँ तक बॉर्डर हमें चाहिए वो हमने यहाँ से होम मेन्यू में जाके सिलेक्ट किए सेल, उसके बाद ऑल बॉर्डर। ये एक तरीका होता है ऑल बॉर्डर। लेकिन मसला ये आ जाता है, हमने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद यहाँ पे कोई भी हमने नाम दे दिया एंटर, तो अब हमारा काम यहाँ तक हो गया, बस इतने सेल में हमने काम करना है। तो फिर इसके लिए हमें इन बॉर्डर्स को जो एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं, जो अप्लाई करे हुए होते हैं, हमने इनको क्लियर करना पड़ता है यहाँ से जाके 9। उसके बाद फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर करेंगे। तो ये सारी मुश्किल आती हैं अक्सर एक्सेल में जब हम काम कर रहे होते हैं वर्कशीट के अंदर। तो ख़ास तौर पे जब हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं तो या तो वो रेंज ज़्यादा सिलेक्ट करके अप्लाई हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो बार बार हम बॉर्डर को ऐड करते हैं कि भाई हमारा काम और ज़्यादा होगा। तो फिर अगर हमने यहाँ तक बॉर्डर दिए हैं, इसके बाद मैं एंटर करूँ यहाँ से नेक्स्ट लाइन में, तो फिर हमें यहाँ बॉर्डर नहीं मिलेंगे। अलग से दोबारा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ तक काम आगे बढ़ाना है, और वहाँ के बाद फिर उसको बॉर्डर करेंगे। तो इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, तो ये आज की इस क्लास में बताऊंगा। यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन कि बस हम एंट्री करें यहाँ पे 1 और पूरी हेडिंग के साथ बॉर्डर शो हो जाए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट यहाँ पर 2 करें तो ऑटोमेटिक पूरी रॉ बॉर्डर में आ जाए। तो ये तरीका बगैर VBA के आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम
जहाँ तक हमें काम करना है अभी हमें नहीं पता कि कहाँ तक हमारी एंट्री हो सकती है या कहाँ तक हम काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं है जो मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बॉर्डर इसमें शो नहीं होंगे। बॉर्डर कब शो होंगे? जब आप एंट्री करेंगे। तो अंदाजे से इसको आप पूरा ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो 10 लाख तकरीबन 1 फीट में रॉ होती है। तो ये पूरी सिलेक्शन बन जाएगी और सिलेक्शन बनने के बाद लास्ट रॉ तक सिलेक्शन बन गई। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि सिलेक्शन जो होगी, इसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल अप, तो यहाँ हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे। हेडिंग के बाद वाले जो सेल आ रहे हैं इसको भी मैं हटा देता हूँ 1 2 को। हेडिंग के बाद वाले सेल से सिलेक्शन बनेगी ऑल एंड रॉ तक। उसके बाद कंडीशनल में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रूल। जैसे न्यू रूल क्लिक होगा, अभी हम लास्ट रॉ पर आए हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आ जाएंगे हेडिंग के पास अपनी। लेकिन न्यू रूल से यहाँ पे हम लास्ट रो पर ही हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और कंडीशनल में दोबारा जाएंगे मैनेज रूल में। मैनेज रूल से जैसे क्लिक करेंगे तो वापस हेडिंग पे आ जाएंगे ऊपर अपने, वरना स्क्रॉल करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैनेज देखें अपने, जैसे ही मैनेज में आ जाएंगे तो यहाँ पर हम टॉप हेडिंग के पास आ जाएंगे अपनी। इसमें ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ यूज़ फार्मूला और इसमें आ जाएंगे इक्वल। फर्स्ट जहाँ से एंट्री स्टार्ट करनी है उस सेल पे क्लिक। यहाँ मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है B5। अब जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फार्मूला लगाते हैं तो रो और कॉलम दोनों से पहले डॉलर आ रहा होता है, यानी सेल फिक्स हुआ हुआ है, तो इसको हम हटा देंगे जो रो से पहले डॉलर आ रहा है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे अब सेल एड्रेस के बाद, और यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन, यानी लेस देन और ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। और यहाँ नॉट इक्वल किसके? 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा यानी ब्लैंक। अगर हमने कहा B5 बराबर नहीं होता ब्लैंक, यानी कुछ है इस सेल में, तो फिर इसका फॉर्मेट क्या रखना है? यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ दिया हुआ है बॉर्डर। बॉर्डर में जाके आउटलाइन चाहिए इस बॉर्डर की पूरी, आपको यहाँ से क्लिक करें, सिलेक्शन डिफाइन हुई हुई है और ओके कर दें। यहाँ से आके ओके, अप्लाई, ओके। अब देखें अभी कुछ नहीं है, जैसे ही 1 करेंगे आ गया ऑटो बॉर्डर, 2 3 4 5 6 7। तो इसमें ये दिक्कत नहीं है कि ये कितना काम आपको करना है, आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया। अब जितने आपका डेटा एंट्री का काम है, अगर कम है तो उतने ही ऑर्डर शो होंगे, और अगर ज़्यादा ऐड होता रहेगा तो वहाँ तक आपके ऑटोमेटिक बॉर्डर चलते रहेंगे। तो कि एक्सेल फाइल में किसी भी नंबर, नेम या लेटर होता है उसको आप ऑटोमेटिक हाईलाइट कैसे करेंगे? कभी कभार बहुत ढेर सारा डेटा होता है तो उसमें पता नहीं लग पाता कि एक जैसे लेटर, एक जैसे नेम, एक जैसे नंबर एक वर्कशीट में, एक्सेल में कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वर्कशीट को पूरा सिलेक्ट करेंगे। ये सबसे पहले कोने से पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे सबसे नीचे है मैनेज रूल। मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगी जहाँ से हमें न्यू रूल ऐड करना है, और ऊपर से सेकंड पे जो सेल दैट कंटेन है वहाँ पे क्लिक करके हमें नीचे देखेंगे बिटवीन को इक्वल टू में करके, जैसे मुझे यू हाईलाइट करना है तो मैं यू इसमें टाइप करूंगा और फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने से हमें जो उसका फॉर्मेट है, आप किस तरीके से हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो विंडो खुलेगी। तो फिल में जाकर मैं कोई भी एक कलर चूज कर लेता हूँ और उसको ओके ओके एंड अप्लाई करने पर मैं देखूंगा कि मेरी जो वर्कशीट है उसमें यू हो जितने हैं वो हाईलाइट हो गए हैं, उन्हें गिनने में आसानी हो गई। और इसी तरीके से मैं कहीं भी अगर यू टाइप करता हूँ पूरी वर्कशीट में, क्योंकि मैंने पूरी